Welcome back students to e-learning platform Gyanmanch Vidyapeeth online education. Students, in today's grammar section we are going to discuss 2 points. Okay, so the first one is rectification of the errors and the next is punctuate the paragraph. These 2 points will be included in the grammar section in your paper. Okay, so it is very significant for us. So first we will go through the first point, rectification of the errors. Students, in rectification of errors you have to first of all find out the errors. A sentence or the passage will be given to you. You have to find out first the error, then you have to rectify it. It means then you have to make the correction in the errors and you have to write down the correct answer. Okay students, like this we will go through. Okay, so students, here first, second, third and fourth, like this 4 sentences are here given to you. So you will do this and see the first sentence. First we are going to read and we are going to have the glance of all the sentences and then we will make the rectification of errors given here. इन sentences में आपको already errors दी गई हुई है. So first हम ये सभी sentences देख लेंगे and उसके बाद हम उसमें correction करेंगे. Okay, so the first sentence given here, Mary Blyton was the popular. Okay, so Mary Blyton was the popular. What is this? Means here it is not suitable. Here we can find easily, we can find a mistake is there. What is that we are going to see. Second one is children's writer born London. Children's writer born on London. So here also this is the kind of pattern. We can easily find the mistake. See students, in the first sentence, Mary Blyton was a popular. ओके जब हम पहली बार ये सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेजॉरिटीली वी कैन फाइंड द मिस्टेक्स अमंग आर्टिकल्स, वी कैन फाइंड द मिस्टेक्स इन द नाउन्स, समटाइम्स इन द टेंस, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक कैन बी देयर. ओके, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट द मिस्टेक ऑफ पंक्चुएशन. कभी कभी ऐसे भी होता है कि पंक्चुएशन की भी मिस्टेक हो सकती है. But majority it will be about these things, the words. The third sentence is she is considered as one of the greatest among children. Okay, तो she is considered, ये sentence read करके ही हम ये find कर सकते हैं कि easily find कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है. बिकॉज इज कंसिडर ऐसा कोई टेंस पूरे इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता कि इज के बाद हम मेन वर्ब यूज करें. ऐसा कोई टेंस ही हमारे इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता. सो इजीली वी कैन फाइंड द मिस्टेक दैट हियर इट इज मिस्टेक अबाउट द वर्ब. नेक्स्ट, द लास्ट सेंटेंस इज राइटर ऑफ द 20th century. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या है कि मैंने ये जो पूरा का पैसेज है उसको ऐसे 4 सेक्शन में, 4 सेंटेंसेस में मैंने आपको डिवाइड करके दिया हुआ है. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पूछने वाले हैं, इसलिए सो हियर एक्चुअली इट इज द सेम पैटर्न, द सेम पैसेज, बट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेंटेंसेस. सो यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक फ्रॉम ईच सेंटेंस. आपको हर किसी सेंटेंस में से एक एक मिस्टेक आपको फाइंड करना है. How we will do it? See, let's see. Now we are going to rectify the errors. It means we are going to find out the errors and we will make the correction within that. How? Let's see. Okay students, so it was the first sentence. Okay, so हमारा first sentence ये था, Mary Blyton was the popular. Okay, Mary Blyton was the popular. अब इट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल द, कि जब भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं तो हम किस तरह से ये आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ दिस आर्टिकल द फॉर सुपरलेटिव डिग्री. हम सुपरलेटिव डिग्री की बात जब कर रहे होते हैं तब हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. ओके, और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ नहीं करते हैं तो हम एक ही बात जो सेम टाइम रिपीट हो रही हो
अगेन वो रिपीट हो रही हो तो हम आर्टिकल द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, पहली बार हमने इस स्टूडेंट की बात कर ली है, सेम पैराग्राफ में हम अगेन वो स्टूडेंट की बात रिपीट कर रहे हैं, देन यू कैन से द स्टूडेंट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द स्टूडेंट। इस तरह से हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन, हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम वो पर्सन की बात पहली बार ही कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज द आर्टिकल हियर ए। Okay, so Mary Blanton was the popular. So here actually the is the error. It is the mistake. Okay, so in exam what you have to do, you will write down like this. Means आप ऐसे write करोगे कि आपको जैसे sequence दिया जाए उसमें आप partitions कर लोगे. First partition will be there of errors and then beside it will be there of correction. Okay, so it will be like that. So here error, so the is here error. So what will be the correction? यहाँ पे the है वो error है, पर उसका correction क्या होगा? So Mary Blanton was a popular. हम पहली बार इसकी बात कर रहे हैं, so here it will be there article A. Okay students, clear? Now let's go through the second sentence. What is the second sentence? See, children's writer, actually here there should be some space यहाँ पे, it is the kind of thing you have to understand. Children's writer born on London, यहाँ पे एक place की बात की गई है और यहाँ पे एक grammar का point है on. It is all about, see, mistakes can be about preposition and conjunction also. ओके, कभी कभी मिस्टेक्स ऐसे प्रीपोजिशन में भी होती है और कंजंक्शन में भी होती है. सो चिल्ड्रंस राइटर बॉर्न ऑन लंदन, वो लंदन के ऊपर बॉर्न हुए ऐसे हम बोलेंगे. अगर ऑन हम यूज करते हैं, ऑन का मीनिंग कैसे होता है? ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, इट मीन्स जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. तो यहाँ हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि ये जो चिल्ड्रंस के राइटर हैं वो लंदन के ऊपर बॉर्न हुए हैं. नो नो नो, वो लंदन में बॉर्न हुए हैं ऐसे हम बोलेंगे ना. दैट्स व्हाई. सो हियर एक्चुअली ऑन, दिस इज द मिस्टेक एंड दैट्स व्हाई यू विल राइट लाइक एरर ऑन. ओके, ये मिस्टेक है. देन व्हाट विल बी द करेक्शन? सिर्फ एरर से काम नहीं चलेगा, हमें उसका करेक्शन भी करना है. सो इंस्टीड ऑफ ऑन को हमें निकाल देना है और उसकी जगह पे हमें राइट करना है इन. चिल्ड्रंस राइटर बॉर्न इन लंदन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द थर्ड सेंटेंस. व्हाट इज दिस? शी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमंग चिल्ड्रंस. अभी सेंटेंस अधूरा है, पर ये जो हाफ सेंटेंस है उसमें से ही आपको फाइंड करना है दैट एक्चुअली व्हाट इज द मिस्टेक. यहाँ पे मिस्टेक क्या है वो आपको इसमें से ही फाइंड करना है. ओके, सो शी इज कंसिडर्ड. अगर आपको टेंसेस अच्छे से याद हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि इज के साथ कभी भी मेन ओरिजिनल वर्ब नहीं आता. इज के बाद में जब भी आप डायरेक्टली वर्ब लिखते हो देन इट विल बी आइदर कंटिन्यूअस टेंस या तो कंटिन्यूअस वर्ब की पैटर्न आएगी. फॉर एग्जाम्पल, वर्ब प्लस आईएनजी, शी इज कंसिडरिंग लाइक दैट. और अगर ऐसा नहीं है और फिर भी आप डायरेक्टली वर्ब लिखने वाले हो इसके बाद, देन इट विल बी द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. इट मीन्स कंसिडर्ड, जो कि हम पैसिव स्ट्रक्चर में ऐसे यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें देखना है कि ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसकी वर्ब पैटर्न में कौन सा मिस्टेक है और उसमें करेक्शन क्या हो सकता है. सो सी, शी इज कंसिडर्ड मीन्स उससे सभी में से ऐसे कंसिडर किया जाता है. मीन्स वो अपने आप को कंसिडर नहीं करती पर लोग उसे इस तरह से कंसिडर करते हैं. इट मीन्स स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है दैट दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस. इट मीन्स एक्टिव वॉइस होता तो यहाँ पे इज कंसिडरिंग ऐसे हम यूज कर सकते थे, पर ये एक्टिव वॉइस नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज पैसिव वॉइस. ये जो ऑथर है वो खुद नहीं अपने आप को कंसिडर करते सभी में से ग्रेटेस्ट, पर उसे ऐसे कंसिडर किया जाता है.
एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। और हमारा ये रूल है स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस ईयर में भी ये स्टडी किया है कि जब भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, आफ्टर इज वी हैव टू राइट डायरेक्टली द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें उसके बाद डायरेक्टली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसका लिखना होता है। दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड हियर दैट एक्चुअली कंसीडर, दिस इज द मिस्टेक। यहाँ पे एरर कौन सा वाला है? कंसीडर। So now we have to make the correction according to past participle form. उसका past participle form क्या होता है? Considered. And this is the correction. Okay? Clear about this? Be understand. आप जब भी ये टॉपिक बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इसके मार्क्स बहुत ही ईजीली आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मिस्टेक्स आपको ऑलरेडी दी गई हुई है। आपको ऐसी ब्लैंक्स नहीं दी गई हुई है कि चलो यहाँ पे ब्लैंक्स है और आप उसे फिल करोगे, ऐसे नहीं है। मिस्टेक आपको दी गई हुई है, आपको उसे सिर्फ फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद जब हमें ये पता चल जाता है कि ये मिस्टेक है, इट मीन्स समहाउ वी नो द करेक्शन। अगर हमें करेक्शन पता है तभी हम ज़्यादातर मिस्टेक उसे फाइंड कर सकते हैं। सो इफ़ यू थिंक सीरियस अबाउट दिस थिंग, देन यू विल बी एबल टू ग्रास्प मोर मार्क्स। आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो इसे। And in your annual exam, board exam, it will be asked for 4 marks. Generally आपको ये 4 marks में ये पूछा जाएगा, इसलिए और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर वो अच्छे से ध्यान दे तो। Okay, now the fourth sentence students we are going through. Writer of the 20th century. Okay students, writer of the 20th century. अब हमें इसमें से एरर फाइंड करना है। पहले आप ऐसे सोचोगे, इस सेंटेंस को ऐसे ही देख लोगे तो आपको एरर इसमें नज़र नहीं आने वाला, पर ये पूरा का पूरा एक पैसेज है, उसे 4 सेंटेंसेस में हमने लोगों ने डिवाइड किया है। कभी ऐसे होगा कि अगर आप डायरेक्टली एरर फाइंड ना कर सके तो आप पूरे पैसेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके भी यू कैन फाइंड आउट द एरर। So here we can say, see, she is considered as one of the greatest among children's. Greatest among children's means उसमें उसे ऐसे नहीं किया गया कि वो greatest writer है, no no no, वो बहुत सारे greatest writers में से एक है। See what is said in the third sentence. She is considered as one of the, बहुत सारे ग्रेटेस्ट राइटर्स में से वो एक है। इसका मतलब कि बहुत सारे राइटर्स में से एक है, तो यहाँ पे राइटर नहीं आएगा, यहाँ पे राइटर्स होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई हियर द मिस्टेक इज राइटर। एंड व्हाट विल बी द करेक्शन ऑफ दिस राइटर? राइटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस पैटर्न you have to work with this, you have to deal with this topic. The name of this topic is, again I'm saying, rectification of errors. In section C, in grammar section, it will be asked for 4 marks in your बोर्ड एग्जाम। ओके, काफ़ी इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से कवर कर सकते हो, इसे अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो, आप 4 आउट ऑफ 4 इसमें ले सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो आप आप आंसर्स लिखते हो तो समटाइम्स इट हैपन्स अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल, सो इट विल नॉट हैपन हियर। सो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इफ you pay attention well and if you take it seriously then. Okay students, now let's proceed further. Okay, now we are going to proceed further for the topic that is punctuate the paragraph. It is very easy. I think it is the easiest topic among all the topics. मुझे जो easiest लगता है आप लोगों के लिए सभी topics में से वो ये topic है students कि punctuate the paragraph. मीन्स आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, एक पैसेज देंगे आपको एग्जाम में और उसमें पंक्चुएशंस कहीं भी नहीं होंगे और आपको अपनी समझ के हिसाब से उसमें पंक्चुएशंस ऐड करने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर वेल इन दिस टॉपिक। इसमें सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेते हैं अपनी अपनी समझ के हिसाब से, बट देन ऑल्सो वी शुड नो अबाउट द यूजेज ऑफ पंक्चुएशंस। ज़्यादातर कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि किस जगह पे कौन से पंक्चुएशंस को यूज़ करना है।
सो इस टॉपिक के लिए अच्छे से आप स्कोर्स कर सकते हो, इसमें अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, पर इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कौन सा पंक्चुएशन का यूजेज एक्चुअली क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक। द फर्स्ट पंक्चुएशन वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज द कोमा एक्चुअली। उसके पास में आपको उसका जो पंक्चुएशन है एक्चुअल में वो भी आपको दिया गया है और उसे प्रोनाउंस क्या करते हैं इस साइन को, दैट इज कोमा। ओके, सो व्हाट इज द यूजेज ऑफ कोमा एक्चुअली, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। द कोमा इज यूज्ड टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज। इट इज यूज्ड, जो कोमा है ना उसे हम एक शॉर्ट पोज लेने के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कभी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग, उसे अलग दिखाने के लिए तब हम कोमा यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फ्रेजेस होते हैं उसमें हमें कहीं पोज लेना हो तो वहाँ पे भी हम ऐसे ले सकते हैं। ऐसे क्लोजेस होते हैं, बहुत सारी सीरीज होती है जहाँ पे भी हम पोज देना चाहते हो वहाँ पर हम कोमा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट जहाँ पर भी हम रुकना चाहते हो थोड़ा 1-2 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर हम कोमा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी। सो यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस ऐसे फ्लैटली नहीं बोल सकती, गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन डाइड ऑन 13 जनवरी, ऐसे नहीं बोल सकते ना। सो हियर गांधी जी, सो यहाँ पर मैंने थोड़ा पोज लिया है। द फादर ऑफ द नेशन, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा पोज लिया है। सो हमें पहले ये हमें अंदाज़ा आ जाना चाहिए, वी हैव टू प्रेडिक्ट दिस थिंग अकॉर्डिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर एक्चुअली वी वांट टू टेक द पोज। So according to this our understanding we can use the punctuation at the proper place. अपनी समझ के हिसाब से हम उसकी ठीक जगह पर हम पंक्चुएशंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी के बाद यूज़ किया गया है डाइड ऑन 13 जनवरी, इसके बाद पोज यूज़ किया गया है द फादर ऑफ द नेशन, उसके बाद एक पोज यूज़ किया गया है। कि यहाँ पर हम पूरा जो सेंटेंस है उसे ऐसे कंबाइन करके नहीं तो बोल सकते ना, उसे ऐसे पूरा कंबाइन करके तो नहीं यूज़ कर सकते ना, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज एंड दैट्स वाई वी हैव टू डील विथ ऑल द एस्पेक्ट्स। आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप कभी स्पीच देते हो, कभी प्रेजेंटेशन वगैरह आप प्रिपेयर करते हो तो वहाँ आप पूरे सेंटेंसेस ऐसे फ्लैटली नहीं बोल सकते। यू हैव टू टेक पोज, यू हैव टू स्टॉप फॉर सम वाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। सो ये सब उसी के रिलेटेड है, पर ये एक रिटर्न फॉर्म में होता है, वो आप ओरली करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, फर्स्ट कि जब हम पोज लेना चाहते हो, देन नेक्स्ट वन इज व्हेन यू एड्रेस अ पर्सन। एड्रेस करते हो जब आप किसी को, मतलब किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यस सर और गुड मॉर्निंग सर, दैट्स लाइक in beginning when you deliver the speech, when you give the speech, then also respected sir, my dear friends, you use these words and in between these words आप ऐसे कोमा यूज कर सकते हो जब आप ऐसे स्पीच देते हो, जब आप सभी को एड्रेस करते हो, ट्रस्टीज को एड्रेस करते हो, प्रिंसिपल सर को एड्रेस करते हो, सभी लोगों को ऐसे अलग अलग से आप एड्रेस करते हो, किसी को भी आप ऐसे एड्रेस करते हो, तब आप बीच बीच में ऐसे रुकते हो, एक पोज लेते हो एंड इन दैट वे इन रिटर्न फॉर्म यू हैव टू यूज दिस पंक्चुएशन कोमा। रिटर्न ऐसे फॉर्म में हम उस पर कोमा यूज करते हैं एक पोज लेने के लिए। नेक्स्ट उसका यूसेज ये भी है टू सेपरेट नंबर्स, डेट्स एंड एड्रेस, सभी चीज़ों को अलग करने के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न ऑन 9 अगस्त 1990 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। मीन्स यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को ऐसे सेपरेट कर दिया। इसे वही बात है, पोज लेने वाली ही बात है, सिर्फ उसका यूजेज हमें डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बताया गया है। बात तो सभी सेम ही है, पर यहाँ पे जो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 9 अगस्त है तो वो एक उसकी डेट और मंथ है, उसके बाद उसका जो ईयर आया है वो है, फिर उसे हमने सेपरेट किया इन लखनऊ को हमने सेपरेट किया उत्तर प्रदेश के साथ। सो यहाँ पे जब हम नंबर्स को, प्लेसेस को ऐसे सेपरेट वगैरह बनाते हैं तभी हम ऐसे कोमा यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम दिखा सके कि ये सभी चीज़ें जो है वो अलग है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पैटर्न सभी कुछ साथ में आता है, पर हमें उसका डिफरेंस भी उसे आइडेंटिफाई करना होता है, दैट्स वाई।
Then the next usage, when two persons, things or other elements are contrasted, the two are separated by a comma. Then the same thing, again the same thing. When we are not able to make the difference, means according to sentence pattern, वो पूरा का पूरा हम सेम ही लाते हैं, पर उसमें जब हमें कभी डिफरेंस लाना होता है, कोई गैप छोड़ना होता है कि उसमें हमें कोई सेपरेशन लाना होता है, डिफरेंस क्रिएट करना होता है, तब हम इसमें कोमा यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मेंट राज नॉट रॉबिन. सो यहाँ पे हम एक पोज लेते हैं. यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को, यहाँ पे दोनों लोगों को हमने अलग किया है कि आई मेंट राज नॉट रॉबिन, मीन्स मेरा मतलब राज था, रॉबिन नहीं था. सो इन दोनों को अलग करने के लिए राज के बाद यहाँ पे उसमें डायरेक्टली कोमा यूज़ किया गया है. सो वाइल टेकिंग, इट्स ऑल अबाउट वाइल टेकिंग पोज. नेक्स्ट, डायरेक्ट quotations are marked by comma. For example, she said I'm sorry. मीन्स जब भी हम quotations स्टार्ट करते हैं, मीन्स उसमें बीच में कॉलन नहीं आता. कॉलन मीन्स जो 2 डॉट्स आर देयर. सो 2 डॉट्स अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, पर आप डायरेक्टली ही ऐसे quotation स्टार्ट कर देना चाहते हो, देन आफ्टर वर्ब यू मे मेक दिस पंक्चुएशन कोमा. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम सॉरी. यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकते थे ना कि शी की जगह कोई ऐसे नाम यूज़ कर सकते थे, किसी का नेम एंड उसके बाद कॉलन, वो जो 2 डॉट्स होते हैं वो, और इसके बाद ये कोटेशन. पर नहीं, यहाँ पे ऐसे कॉलन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कोमा यूज़ कर दिया गया इसलिए. सो इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग. ओके स्टूडेंट्स, next we are going to see the punctuation that is about semicolon. अभी हम जिस punctuation की बात कर रहे हैं वो अभी semicolon है. आप उसका साइन क्या है वो आप देख सकते हो कि एक डॉट है और इसके नीचे कोमा की साइन है. So that is the actually sign of semicolon. This punctuation is that the semicolon represents a stronger pause than comma. It's used to stress the close relationship between one sentence and another. For example, sentence हम complete नहीं करना चाहते हैं, हम sentence एक combine ही रखना चाहते हैं, पर हम ऐसे दिखाना चाहते हैं कि the both are actually interconnected, but उसमें काफ़ी गैप भी है. जो सेमीकॉलन है ना, वो कॉमा से ज़्यादा एक गैप देता है. एक सेंटेंस जो होता है, फुल स्टॉप जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. ओके, और जो सेमीकॉलन है वो एक सेंटेंस के 2 पार्टीशंस करने में हमारी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट. टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन. टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया हुआ है. मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो. सेमीकॉलन ऐसा पंक्चुएशन है कि जिसमें जब भी सेमीकॉलन यूज़ किया गया हो तब उस सेंटेंस ख़त्म ना होने के बावजूद भी उसमें से हम मीनिंग निकाल सकते हैं पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, भले ही सेंटेंस कंप्लीट ना किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट. आज हम जिस टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट, आज जो चीज़ हमें अच्छी लगती है कल शायद हमें वो चीज़ अच्छी ना भी लगती हो, उसे हम नफरत भी कर सकते हैं. सेमीकॉलन जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको ऐसे फील होगा कि ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट भी हो सकता था, पर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि उसके आगे के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो यहाँ पर भी जो सेंटेंस दिए गए हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. सो इसलिए जो यहाँ इन 3, एक्चुअली द सेंटेंस इज द वन. यहाँ पे सेंटेंस हमें जो दिया गया है वो एक ही है, पर इस एक सेंटेंस के हमने 3 पार्टीशंस कर दिए हैं. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस है उसमें से भी एक मीनिंग निकलता है, जो सेकेंड सेंटेंस है उसका भी खुद का अपना अलग मीनिंग होता है, और जो थर्ड सेंटेंस है उसका भी अपना एक अलग मीनिंग होता है. ओके, कि आज हमें कुछ चाहिए, आज हमें वो चाहिए जो हमें कल नहीं भी चाहिए होगा, और आज हम
उस चीज़ की डिज़ायर करते हैं कि शायद उस चीज़ से हमें कल डर भी हो सकता है। सो हर किसी के मीनिंग में जो अलग अलग तरीके से हम उसे मीन आउट कर सकते हैं, फिर भी सेंटेंस उसका कंबाइन ही रहता है, पर फिर भी उसके स्ट्रॉन्ग तरीके से हम उसके पार्टीशंस कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन यूज सेमीकोलन। जब भी आपको ऐसे फील हो कि यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है पर हो सकता था, क्योंकि उसका मीनिंग एकदम स्ट्रॉन्ग कंप्लीट तरीके से हो जाता है, सो इन दैट केस that can be considered as a strong pose, and that's why you can use at that place semicolon. Okay, एक ही सेंटेंस हो, उसके जब आप स्ट्रॉन्ग मीन आउट करके उसके पार्टीशंस करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन यूज सेमीकोलन एज द punctuation. So it's about semicolon, students. So I hope that you could understand from this video lecture. Students, suppose you find any difficulty, you are free to ask me anytime. Okay students, work hard, give your best, perform your best, and take care of your health. Thank you students, have a nice day.